Once again, a very good morning to all of you. This is Abhilasha, your social science teacher. So, class, today we all are going to continue our chapter second of your political science book, that is constitutional design. In our last class, what we have we discussed about the democratic constitution of South Africa, and after that, we have seen how South Africa struggled against the apartheid system and what steps they took to make a new constitution. So finally, in 1994, they have their new independent new president for their Republic Democratic of South Africa, Mr. Nelson Mandela, in the year 1994. Okay, so after that, this is all about both of these topics. So I gave you the homework. Does the story of South African struggle for freedom remind you of the Indian national movement? Make a list of similarities and dissimilarities between the two on the following points. So, yes, who have done this? Nature of colonialism. Colonialism kya tha? Similarities. What is the similarity? Please do raise your hands if you guys have done it. Complete kiya hai ye? Yes. Yes, Divyanshu. What is the nature of colonialism? मैम गुड मॉर्निंग मैम. Good morning. Yes. मैम कॉलोनिज्म मतलब होता है कि मैम मतलब जैसे कोई जैसे अनदर कंट्री पे रूल करती है, वो मतलब इम्पोज करते हैं अपनी पॉलिसीज, वो होती है कॉलोनिज्म. अब डिफरेंस बताना है. ठीक है. Difference and similarities and dissimilarities between South African and Indian national movement. यस मैम. यस मैम. मैम तो मैम जैसे मैम उधर मैम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में मैम पॉलिसीज से ब्रिटिश ने इंडिया को अपने कब्जे में किया था. और मैम जब इधर बात करें, तब इधर भी मैम वही इधर सिमिलैरिटी यही थी कि यहाँ पे भी वैसा ही था, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा था, लेकिन यहाँ पे एक इक्वालिटी चल रही थी ब्लैक और व्हाइट के बीच में. इंडिया में ऐसी नहीं थी. इंडिया में तो वो पॉलिसी. yes. हाँ, तो मैम इसके बेसिक ब्लैक और व्हाइट के नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म में आप बोल सकते हो, यस, यूरोपियन कंट्रीज ने ही क्या किया था, दोनों ही कंट्रीज में कॉलोनी स्टैब्लिश की थी. प्लस दोनों ही कंट्रीज में जो यूरोपियन कंट्रीज है, ट्रेड के पर्पस से आए थे. ओके, सो आफ्टर दैट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज. Lakshita, relationship between between different communities. Yes, good morning, ma'am. Ma'am, in the similarities are the white rulers treated all non-whites as the inferiors. Okay. The whites regarded Indians and Africans like inferior than them. Okay. And the dissimilarities are relationship between different religions and some communities in India was there. They all believe themselves to be Indian, not the like whites and blacks. But in South Africa, it was regarding the racial discrimination. Okay, racial discrimination. Okay, very good, Lakshita. Okay. Now, next is leadership. Gandhi and Mandela. Mahatma Gandhi and Nelson Mandela. दोनों में similarities क्या थी? What about rest of you guys? Yes, Yojana. Yes, Yojana. Aryan. Yes. Ma'am, Nelson Mandela and Mahatma Gandhi both. Nelson Mandela and Gandhi. Nelson Mandela and Mahatma Gandhi both wanted a good society where there is no discrimination between the people,
of the country, and they lived with the peace, and both wanted a democratic society. Okay. And what is the dissimilarity? That Nelson Mandela became the president and Mahatma Gandhi became a leader only. No. What else? Else I don't Nisar, good. Aryan, your similarities तो आपने सही बताई है. Dissimilarities. that I don't know. You don't know. Yojana. हेलो मैम. मैम Yes, Yojana. डिससिमिलरिटीज मैम वो मतलब महात्मा गांधी तो फ्रीडम चाहते थे इंडिया के लिए, और वो वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उसको खत्म करना चाहते थे. No. वो भी फ्रीडम चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे. Think about these questions once again. ठीक है? Now, party that led the struggle: African National Congress, Indian National Congress. Only 4-5 students are there जिसने ये work किया है. And what about rest of you guys? I want everybody to be attentive, and I want answers from everyone. I will ask you again. कल आप ये समझ लीजिए टेस्ट है आपका, और मैं आपसे लिखवाऊंगी ये आंसर. So find out, search it, and I will ask you about it. Method of struggle, everything. इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है. आप इंडियन स्ट्रगल के बारे में, इंडियन फ्री मूवमेंट के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं आप. Okay, so prepare yourself, prepare this, and after that we will talk about it. Okay, now your next topic of this chapter is why do we need a constitution? Okay, so a very important question: why do we need a document of rules and regulation? Why do we need it? What is the you can say, what is the purpose of having a constitution? So as you all know, the South African example is a good way to understand why do we need a constitution and what do constitutions do. In South Africa's example too, what we have seen that कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एंड उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि वी ऑल लिव विद इक्वालिटी के साथ रहेंगे, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, मेन एंड वुमेन आर इक्वल. ठीक है? जो वाइट्स ने किया है हम उसको फॉरगिव कर देंगे. ठीक है? तो एक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, एक लोगों को इजीली आप आंसर एक वर्ड में बताऊं तो प्रोटेक्शन मिलती है. Okay, so the oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. They had their fears, they wanted to safeguard their interest. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted substantial social and economical rights. Okay, अब देखिए 1994 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. Everybody was in the स्टेट कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, बट कोई भी कम्युनिटी किसी के साथ कुछ भी कर सकती है. ठीक है? उन्होंने बोला कि हम सब मिलजुल कर रहेंगे, बट मिलजुल कर यूनाइट होके रहने के लिए ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है. चाहे वो व्हाइट्स हो, चाहे वो ब्लैक्स हो. व्हाइट्स के अंदर भी कहीं ना कहीं ये था कि हमने इनके साथ इतने साल इतना इल ट्रीट किया है, तो ये हमसे जो है बदला ना ले ले. ठीक है? वापस से. तो एवरीवन हैड देयर ओन फियर्स. ठीक है? तो वो अपने इंटरेस्ट्स को, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे. ठीक है? सो ब्लैक मेजॉरिटी जो थी वो क्या चाहती थी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को उन्होंने मान लिया था कि हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. एक
they wanted substantial social and economical rights. Substantial means, what is the meaning of substantial? Substantial means कि acceptable बोल दो आप, ठीक है। दे वांटेड कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो, इकोनॉमिकल राइट्स दे, राइट। द वाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। अब देखिए दोनों ब्लैक्स और व्हाइट में डिफरेंस बताया गया है। ब्लैक्स चाहते थे डेमोक्रेटिक राइट्स रहे, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, और वाइट्स वहीं पे क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारी जो प्रिविलेजेस है बनी रहे, हमारी प्रॉपर्टी जो है प्रोटेक्ट होके रहे, हमसे हमारी प्रॉपर्टी ना ले लें, right? So after long negotiation, both parties agreed to a compromise. The whites agreed to the principle of majority rule and that of one person one vote. This is universal adult franchise, one person one vote, equal vote. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. The blacks agreed that the majority rule would not be absolute. They agreed that the majority would not take away the property of the white minority. This compromise was not easy. How was this compromise going to be implemented? So even if they managed to trust each other, what was the guarantee that this trust will not broken in future? So बहुत सारे questions arise हो रहे थे. So finally blacks and whites की जो parties थी दोनों एक डिसीजन पे आई, उन्होंने बहुत डिस्कस किया और आफ्टर दैट एक नेगोशिएट किया, दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। फर्स्टली ब्लैक्स ने क्या कहा कि ठीक है, ब्लैक्स ने कहा कि मेजॉरिटी में हम आपको क्या करेंगे, हम मेजॉरिटी में हैं, हम आपको ऑप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, वन पर्सन वन वोट देंगे, हम आपकी जो भी है आपकी प्रॉपर्टी है आपसे नहीं छीनेंगे, आपसे नहीं लेंगे। वहीं वाइट्स ने भी ये प्रिंसिपल माना कि ओके हम सब जो हैं एक बेसिक राइट्स होगा हम सबके लिए, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करेंगे, इक्वालिटी रहेगी, वन पर्सन वन वोट रहेगा। तो जब ये कॉम्प्रोमाइज हुआ, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज वो कर तो लिया उन्होंने, बट क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो कॉम्प्रोमाइज था अब इम्प्लीमेंट कैसे होगा, हम ट्रस्ट कैसे करेंगे एक दूसरे को, और अगर हम ट्रस्ट कर भी रहे हैं तो अभी तो ठीक है हम ट्रस्ट कर रहे हैं, इन फ्यूचर क्या गारंटी है कि हम उसे वायलेट नहीं करेंगे और हम मिलजुल कर रहेंगे, हम उस ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करेंगे। सो द ओनली वे to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone should abide by. Okay? अब देखो एक फुटबॉल गेम है या एक क्रिकेट मैच हो रहा है, अगर उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक है मैंने ओरली बोल दिया गेम्स खेलने से पहले, ठीक है, सेकेंडली है कि एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की पूरी गाइड बुक है और आपने एक साइन किए हैं कि हाँ हम इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, आपको उसके डिसीजंस मानने पड़ते हैं, राइट। तो जस्ट लाइक दैट उन्होंने बोला कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट तभी कर सकते हैं जब हम और हमारा ट्रस्ट तभी फ्यूचर में ब्रेक नहीं होगा जब हम इन रूल्स को लिख लेंगे, इन रूल्स को एक बुक में लिख लेंगे। एंड फाइनली दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर, कि रूलर्स को हम फ्यूचर में कैसे चूज करेंगे, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनके पास क्या पावर होंगी, क्या पावर नहीं होंगी। फाइनली दीज रूल्स डिसाइड्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स के क्या राइट्स होंगे। जो विनर है, दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली, ठीक है। और इन रूल्स को क्या बोलते हैं, हम इस रूल्स को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, हम इजीली उसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। सो उन्होंने क्या है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो भी ये चाहते थे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट में लिख लिया था, उसके कुछ बेसिक रूल्स थे और ये जो रूल्स थे सबसे सुप्रीम थे, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट इन्हें इग्नोर नहीं कर सकती थी। और इन्हीं सेट ऑफ बेसिक रूल्स को हमने क्या कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी यूनिक
and every country has diverse, as you all know, every country has diverse groups of people. उनके relationships जो हैं डिफरेंट होते हैं. हो सकता है कि जैसे व्हाइट्स और ब्लैक्स में थे, वैसे ही हो सकता है वर्ल्ड के और भी दूसरी कंट्रीज में जो है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के जो रिलेशन थे, इंटरेस्ट थे, वो चेंज हो, डाइवर्स हो. ऑब्वियसली होंगे, हमारे इंडिया में भी देख लीजिए, different different diverse people are living here and their interests are different, right? So whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. हमें उन सभी डाइवर्स लोगों के लिए, कम्युनिटीज के लिए कुछ कॉमन रूल्स रखने चाहिए, कॉमन रूल्स होने चाहिए. एंड दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट्स. Any association needs to have its constitution. It could be a club in your area, a cooperative society, a football game or anything. ठीक है, कुछ भी हो, हम सबको एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पॉलिटिकल टर्म, बट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की गाइड बुक ही तो है, कि कैसे हमें, गाइड बुक, इवन उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड होते हैं. तो जस्ट लाइक दैट एक गेम में होते हैं, ठीक है, एक कम्युनिटी में होते हैं, एक आप बिल्डिंग में रह रहे हो उस, या सोसाइटी में रह रहे हो, उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. ठीक है, तो वो क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन ही है. बट इन पॉलिटिकल सेंस वी यूज दिस टर्म कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री, फॉर अ स्टेट, जिसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, राइट्स होते हैं. Okay, so the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. ऐसे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, या फिर रिटर्न, कोई जरूरी नहीं है रिटर्न हो. जो ब्रिटिश आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न नहीं है, बट इट इज मेंशन्ड इन डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ओके, सो एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया जाता है कंट्री के जितने भी लोग हैं वो साथ में मिलजुल कर रहेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी called citizens, and also the relationship between the people and government. ओके, सो बहुत सुप्रीम लॉ है ये, लोगों के बीच का रिलेशनशिप, जो भी लोग सिटीजन्स रहते हैं उनके रिलेशनशिप को वो डिटरमाइन करते हैं. गवर्नमेंट और सिटीजन्स के रिलेशनशिप को डिटरमाइन करते हैं, एंड और भी बहुत सारी चीजें करती है. जैसे अ कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज मार्क दीज, a constitution does many things. Like first, it generates a degree of trust. एक ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में रहती है. सेकेंडली, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, कि गवर्नमेंट हमारे कंट्री को गवर्न कैसे करेगी, कौन सी गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है, क्या डिसीजंस वो ले सकते हैं. ठीक है. नाउ थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि अब गवर्नमेंट के पास गवर्न करने की पावर तो है, बट उनमें कुछ लिमिटेशंस भी है, जिससे कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना करें. ठीक है. सिटीजन्स के राइट्स हैं, लाइक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव फंडामेंटल राइट्स. सो जस्ट लाइक दैट इट लेज डाउन लिमिट्स एंड also have some rights for the citizens too. And fourthly, it expresses the aspirations of the people about creating a good society. Very important one. एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट शोज द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, व्हाट पीपल वांट इन देयर कंट्री, व्हाट डिजायर, जितने भी डिजायर्स हैं उनके, वो सारे के सारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, मेंशन होते हैं. दीज आर द फोर important terms. That's why we need a constitution in a country. Firstly, it generates a degree of trust and coordination. Secondly, it specifies how the government will be constituted. Thirdly, it lays down limits on the powers of the government and gives some rights to the citizens. And fourthly, it expresses the aspirations or desires of the people, like what type of society they want and what type of ideals they want in their society. All these things are mentioned in your constitution. So
all those countries who have constitutions, now this is very important statement, all countries that have constitutions are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitutions. ठीक है, कोई जरूरी नहीं है जो भी कंट्रीज है, जो भी जिन भी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो, कोई जरूरी नहीं है, बट this is necessary that all those countries who are democratic, जो that are democratic, जो democratic है वहां पे constitution का होना बहुत जरूरी है. So this is a very important statement. So, and after the war of independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. After the revolution of the French, people approved a democratic constitution. So, ये जब आप बोल सकते हो 18th सेंचुरी से जो है ये ट्रेंड आ रहा है. पहले अमेरिकन ने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, फिर फ्रेंच ने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इवन इंडिया ने भी अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया. दे हैव रिटन देयर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, 3 इयर्स के लिए बैठे वो और आपस में मिलके डेलिब्रेशंस करके उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. So for a country it is like necessary to have a constitution, especially for a democratic country, because it includes all those things which somehow fulfill the desires or give satisfaction to the citizens of the country. ओके, सो इट गेव देम सम सेंस कि वो उस चीज जो भी चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है उन्हें एक्सेप्ट करें. फॉर एग्जांपल, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सम आइडल्स मेंशन्ड, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन दिस चैप्टर. तो ये सारी चीजें जो मेंशन्ड है वो कहीं ना कहीं सिटीजन्स को क्या है, सिटीजन्स को एक्सेप्ट करने के, ये हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है वो अच्छे हैं, सिटीजन्स को एक्सेप्ट करने के लिए एक रीजन देती है. ठीक है, सो वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज it satisfies the needs of the people, and satisfaction is very important. Okay, so these are the 4 important points. Why do we need a constitution in a country, or what are the functions, or you can say what are the features of the constitution. These are like basically the functions of the constitution. Okay, so class, this is all about today. Thank you for joining the class, everybody.